आपने लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर का सफ़र कैसे तय किया? डर ये शब्द तो आता ही नहीं है फौजी की डिक्शनरी में, तो उसका कोई सवाल ही नहीं। और मेरा पहला जो पोस्टिंग था यूनिट के साथ पंजाब से शुरुआत हुई थी, लेकिन पंजाब में कुछ एक महीने रहने के बाद तुरंत ही हम जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए थे। आखिरी में हम पहलगाम और ऐश मकाम में भी तैनात थे। ऑपरेशन मेघदूत की जो डिप्लॉयमेंट है वो शायद किसी अन्य देश को इस तरह की डिप्लॉयमेंट करने का मौका नहीं है। तो देयर एब्सोल्युटली unimaginably difficult conditions for anybody to survive, let alone survive and fight. कोर ऑफ इंजीनियर्स के लिए कहा जाता है फर्स्ट इन लास्ट आउट, और वहीं पे हमें इत्तला किया गया कि एक्सरसाइज लोकेशन से आपने वापस पीस स्टेशन में नहीं आना है, आपने वहीं पे रुकना है क्योंकि और कुछ करने का आदेश आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा खतरा है, इसके बाद शायद हम अगला दिन देखे भी ना। अभी रिसेंट में बड़ा सा हादसा हो गया था अपने नेशन के साथ, उसको टैकल करने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, एंड विच इज़ स्टिल एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। तो द फर्स्ट बुनियादी उसूल व्हाट वी से इज नाम, नमक और निशान, यही है हमारी पहचान। Hello and welcome to Bonafide Banter. From the rugged terrains of Kashmir to the deserts of Rajasthan, from commanding combat regiments to shaping young minds, today's guest has lived a life dedicated to service, leadership, and nation building. A paratrooper, a Black Cat Commando team commander, a teacher, a mentor, and now continuing his second innings as the chief engineer at Somaya Education Trust. Brigadier Dilip Ganesh Patwardhan ji's journey is a remarkable story of courage, discipline, and legacy. An alumnus of VJTI Mumbai and Madras University, he has worn many hats: soldier, leader, educator, and now builder of institutions. Join us as we uncover the lessons behind his 33 years of the Indian Army, the battles fought, the values learned, and the purpose that still drives him beyond the uniform. So without further ado, I welcome Brigadier G. Dilip Patwardhan, sir. Thank you so much for joining us today. It's a pleasure to have you. Not only a pleasure, but an honor to have you here today for our show. So thank you for taking out time and being here with us. Thank you, Jalak. Jai Hind. It's a pleasure for me and a big honor for me as well. And thanks for calling me here. Thank you so much. Firstly, your rank is a brigadier. Could you please explain as to what exactly a brigadier does? Okay. As the name itself suggests, a brigadier is somebody who commands a brigade. Okay. So brigadier is basically a brigade commander. If he is from a kind of an arm where there are brigades, then the brigadier rank officer would command a brigade. Otherwise, a brigadier rank officer is something equivalent to an air commodore of the Air Force, or he is equivalent to commodore of the Navy. Oh, wow. Okay. So he is in a position of commanding and guiding approximately 8,000 to 10,000 troops. And what is the designation of the troops that you command? There are three different categories. Yes. There are Jawans, Huh. there are junior commissioned officers, and there are officers. Okay. In the officers cadre, there are different ranks starting from lieutenant to general. In the junior commissioned officer, there are ranks Naib Subedar, Subedar, and Subedar Major. And among the Jawans, ranks start from the youngest is a Sepoy, Okay. then a Lance Nayak, a Nayak, and a Havaldar. Okay. Okay. You joined the army as a lieutenant. एंड आपने लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर का सफ़र कैसे तय किया? Okay, for information of all, whenever an officer gets commissioned from the academy, whether it is Indian Military Academy or it is Officers Training Academy,
The first rank which he gets commission on is the lieutenant. Okay. From lieutenant up to brigadier and beyond, the promotions are based on the time scale as also based on the various selection boards and the selection criteria that the officer has to pass. So from lieutenant onwards, normally a lieutenant becomes captain, that is the first promotion he gets after putting in 3 years of service. Okay. But if he is serving in field area, then the service criteria is lowered to just about 1 year of ground service and he can become a field captain. From captain to become major, another 3 years. So at the service of 6 years, he becomes a major. Okay. Then from major to lieutenant colonel, there is a long wait of almost about 7 years. So at his or her service of 13 years, the officer becomes a lieutenant colonel. Wow. Now from lieutenant colonel onwards, the officer has to face selection boards. Okay. The selection boards, they are basically taking into consideration the entire profile of the officer till that time, maybe at the service bracket of 15, 16 or 17 years, depending on the arm or service he or she is from. And in that selection board, the Lekha Jokha of all the 16, 17 years of service is considered. The various courses that the officer does, the various tenure profile the officer has done, and of course the 360-degree assessment or appraisal, what he or she has earned. Hanji. And the first selection board is faced by an officer when he or she is considered from lieutenant colonel's rank to become a full colonel. Okay. And that happens something in the service bracket of anything between 16 to 18, 19 years. Okay. And thereafter, the next selection board is faced by the officer when the officer is approximately at 26, 27 years of service bracket for the brigadier's rank. And after brigadier, then the major general's rank, then lieutenant general's rank, and the general's rank. Wow. So the promotion boards are conducted after lieutenant colonel onwards. Since 2020, the rank of CDS has been introduced, Okay. the Chief of Defence Staff. Okay. He's for all three services, not necessarily for the army. You could be from army, you could be from Air Force, you could be from Navy. Okay. Within the army, after the general's rank, you must have heard about great Sam. He was Field Marshal. Field Marshal. Yes. But Field Marshal is not a normal promotion rank for an army officer. A general who has done exceptionally, outstandingly well in his career is suitably recognized by giving him the rank of a Field Marshal. You would appreciate this fact by knowing that till now there had been only 2 Field Marshals of the Indian Army. Yes. Yes. One is Field Marshal K.M. Cariappa and one is Field Marshal Sam Manekshaw. So, Field Marshal is not a regular army promotion rank. And a Field Marshal is not for a tenure, he is for lifetime. Field Marshal Sam was wearing his uniform till the time he was alive. Yeah. Same about Field Marshal Cariappa. So that is the difference. The highest achievable rank in normal course in the army is general, who is the chief of the army staff. Okay. That's the hierarchy. So you had mentioned that, while we were having a casual chat, that you've had Field Marshal Sam Manekshaw ji come address you. I mean, your Course. the course. Yeah, of course. How has it been? Amazing. I mean, he is one person who could motivate thousands of cadets or thousands of officers without even addressing them. Just his one sight, the way he could carry himself, the way he conducted himself, the way he looked, Wow. itself was a big motivation. And we were fortunate that I had the good opportunity of listening to him twice from academy day till he was there. Once in the academy, he addressed the passing out course which passed out before us. Okay. And once when I was lucky to do the
Defense Services Staff course in Wellington. He addressed because he was settled there that time. ओके, सो आपने इन शॉर्ट कितने ईयर्स सर्व किया बिफोर बिकमिंग अ ब्रिगेडियर? Before becoming a brigadier, I served for almost 26-27 years. एंड ओवरऑल कितना सर्व Overall, किया? 33 years. सर, हमने सुना है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग्स बहुत रिग्रेस होती है फिज़िकली, मेंटली। तो क्या आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन आया था कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल है, बट कैसे भी करके आपने वो सक्सेसफुली कंप्लीट की? क्या आप उसका एक एग्जांपल दे सकते हो? किसी भी मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग, चाहे वो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, एयरफोर्स एकेडमी है, नेवल एकेडमी है, या किसी भी रेजिमेंटल सेंटर की ट्रेनिंग, ये सख्त और हार्ड होती है। इसकी वजह यह है कि हम हमारे ऑफिसर्स को, जवानों को इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि उनको आगे जाके इससे भी ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में अपने देश की सुरक्षा के लिए ड्यूटी करनी है। इसलिए फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली रोबस्ट और रेजिलिएंट बनाने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग सारी एकेडमी में दी जाती है। ऐसा कोई भी कैडेट नहीं होगा जिसे ट्रेनिंग के दौरान कभी दिक्कत महसूस नहीं होगी। किसी को बहुत पहले हो गई होगी, हाँ। कोई फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग है, उसको शायद बाद में हुई होगी, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान हर एक कैडेट को, हर एक ट्रेनी को, हर एक रिक्रूट को दिक्कत ज़रूर होती है। जब तक लोहा तपता नहीं है तब तक उसका औजार नहीं बनता। बिल्कुल। कैडेट जो ट्रेनिंग होती है कभी गिव अप भी कर देते हैं? अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को कोई चोट आ जाती है, कोई क्षतिग्रस्त हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि जिस तरह के टेरेन से हम गुजरते हैं, जिस तरह के कंडीशन में हम वहाँ पे एक्सरसाइज एरिया में रहते हैं, नेसेसरीली वहाँ पे अंधेरा होता है, बारिश का मौसम भी होता है, जंगल भी होता है, टेरेन में बहुत ज़्यादा पथराव वाले राव होते हैं जिसके थ्रू चलते हुए, जिसके थ्रू निकलते हुए कई बारी कोई क्षतिग्रस्त हो सकता है, कोई इंजोर्ड हो सकता है। अगर कोई इंजोर हो गया तो उस इंजुरी के साथ बचा हुआ रूट मार्च करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी किसी को मेंटली गिव अप तो नहीं करता कोई, लेकिन फिजिकल लिमिटेशन की वजह से वापस आना पड़ता है। सो ये तो बात हो गई कि ये आपका लास्ट कपल ऑफ डेज का जो ट्रेनिंग होता है कमेमोरेशन के पहले की, बट उसके पहले भी ट्रेनिंग पीरियड रहता रहेगा जिसमें शायद आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज होती रहेगी। क्या कभी उस वक्त भी कोई गिव अप करते हैं? बहुत ही रेयरली ऐसे केसेस होते हैं कि ट्रेनिंग एक बार शुरू होने के बाद पहले 21 दिन जाने के बाद फिर जो कंटिन्यू करता है वो जनरली गिव अप नहीं करता। किसी को अगर गिव अप करना होता है तो पहले 21 दिन में, 28 दिन में हो सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी या उसका माइंड अभी तक उस तरह की रिगरस ट्रेनिंग के लिए कंडीशन नहीं हुआ है। अगर उसने ठान लिया है कि नहीं मैं करके रहूँगा तो वो ज़रूर कर सकता है। अगर उसने अगर दिल तोड़ दिया या उसके मन में इच्छा नहीं है या उसको ऐसे लगता है कि मैंने गलत ऑप्शन चूज़ लिया है तो शायद वो छोड़ सकता है। ट्रेनिंग रिगरस ज़रूर होती है, लेकिन अगर किसी ने ठान लिया तो वो ज़रूर कर सकता है। आफ्टर यू रीच्ड योर फाइनल डेस्टिनेशन, उसके बाद पासिंग आउट परेड का आपका क्या एक्सपीरियंस था? रूट मार्च सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद फिर पासिंग आउट परेड तक का जो समय है वो हर एक कैडेट बहुत ही खुशी के साथ मनाता है, काटता है। जबकि उस समय भी आराम कोई नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपका रूट मार्च खत्म होकर आप वापस आते हो तो आपको पासिंग आउट परेड की तैयारी करनी होती है, जो ड्रिल स्क्वायर में ड्रिल करनी होती है, जो दिन में कई घंटे की होती है। ओके। क्योंकि पासिंग आउट परेड का स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे वो इतना आले दर्जे का स्टैंडर्ड वहाँ पे हर बैच को दिखाना होता है कि उसमें कोई डाइल्यूशन की कोई रियायत नहीं है। इसलिए जैसे ही आपका रूट मार्च और एक्सरसाइज खत्म हो जाता है, 2 दिन के अंदर आप वापस ड्रिल स्क्वायर में आते हो और आपका उतनी ही रिगरस ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाती है ड्रिल करने के लिए। बट वो हर एक कैडेट बड़े खुशी खुशी करता है कि उसको पता है कि अभी उसके ट्रेनिंग का अंतिम पड़ाव आ गया है और इसके बाद वो कमीशन होके ऑफिसर बनने वाला है। क्या फीलिंग थी सर तब?
Well, it was 33-34 years back, but I can still count कि वो फीलिंग बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सेटिस्फाइंग थी, बहुत ही खुशी की थी। और हर एक किया क्या जाता है? पासिंग आउट परेड अगर आपने देखा होगा, चाहे नेशनल डिफेंस एकेडमी का या इंडियन मिलिट्री एकेडमी का, तो पासिंग आउट परेड में जो पासिंग आउट कोर्स होता है जिसमें तकरीबन 250 के आसपास कैडेट्स पास आउट होते हैं एक बैच में, 250 से 300। तो वो सारे कैडेट्स अपनी ओर से जो रिव्यूइंग ऑफिसर जो आते हैं और जितने भी पासिंग आउट कैडेट्स के पेरेंट्स आते हैं और जो चीफ गेस्ट आते हैं, उनको एक परेड डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ओके। और परेड ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हमारे पूरे कैडेट्स ने कितना अच्छा फिजिकल स्टैंडर्ड हासिल किया है, कितना अच्छा डिसिप्लिन हासिल किया है, कितना अच्छा आपसी तालमेल और कोऑर्डिनेशन हासिल किया है, और वो किस तरह से आपको यानी कि चीफ गेस्ट को सम्मान देना चाहते हैं, ऑनर देना चाहते हैं। सो पासिंग आउट परेड इज बेसिकली दैट, इट इज डिस्प्लेइंग द डिसिप्लिन, द फिजिकल एबिलिटी, द कोऑर्डिनेशन and the overall morale of the passing out course. Right. So it is the ultimate thing for any officer as a cadet before he gets his commission. Was that the first time you wore your army uniform? The uniform is there even during the training, but that is the first time that after the passing out parade you wear your rank on your shoulders. And who makes you wear that rank? And it's such a beautiful tradition. इतनी अच्छी परंपरा है कि हर एक कैडेट के माता पिता को वो सम्मान दिया जाता है। Wow. जिन्होंने अपने बच्चे को या अपने बेटी को देश की सुरक्षा के लिए सौंप दिया है, उनको ये सम्मान दिया जाता है। माता पिता या कई कैडेट्स के ग्रैंड पेरेंट्स भी आते हैं। हमारे इंडियन आर्मी की ग्लोरियस ट्रेडिशन है, परंपरा है कि सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ऑफिसर्स या जवान हैं हमारे पास। तो किसी के दादाजी हैं जो खुद फौजी रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। वो बिल्कुल। उनके पिता के लिए भी बहुत बड़ी गर्व की बात होती है, माता के लिए गर्व की बात होती है। तो ये सम्मान उनको दिया जाता है। क्या आपके फैमिली में भी आप पहले फौजी रहे हो या आपके फैमिली में थे? जी हाँ, मेरे फैमिली में मैं पहला ही था जो सैनिक बना या जो जिसने यूनिफॉर्म परिधान करने का निर्णय लिया। तो मेरे पासिंग आउट परेड के दौरान भी मेरे पेरेंट्स आए थे, जिनको ये अपने आप में बहुत बड़ी गर्व की बात उनको भी महसूस हुई थी। लेकिन मैं ये भी चीज़ गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरा खुद का बड़ा बेटा भी आर्मी में है, वो अभी मेजर है। तो जब उसका पासिंग आउट परेड हुआ था तब मैं सर्विंग कर्नल था, और उस समय जो गर्व मुझे महसूस हुआ, अफसर बनने के बाद पहला सैल्यूट जो उसने दिया वो स्वीकार करते समय मुझे जो गर्व महसूस हुआ, उसका उसकी कोई मिसाल नहीं है। सो कमेंडेबल। सो सर, जैसे कि मूवीज़ में भी बताया गया है, यू नो, द कमेमोरेशन सेरेमनी जैसे लक्ष्य में बताया गया था, तो हम एज कॉमन सिटीजन्स हमें ये एक्सपीरियंस करने नहीं मिलता है। बट इज़ इट एग्जैक्टली वॉट इट इज़ शोन इन द मूवी, और हाउ इज़ इट? Yes, it is quite similar to what is shown in the movie, but the sanctity attached to this event, this function, this parade, is much more than what probably is shown in the movie. I mean, without commenting on any particular movie, I would say जो हमारी मूवीज़ में दिखाया जाता है उसमें वो गरिमा या वो सैंक्टिटी शायद नहीं दिखाई जाती जो उस परेड के साथ जुड़ी हुई है। राइट। वो परेड अपने आप में बहुत उसकी गरिमा है। मूवीज में जो दिखाया जाता है वो शायद उतनी गरिमा के साथ नहीं दिखाया जाता। सर, जब आपने पहली बार यूनिफॉर्म पहना था तब आपके दिल में क्या आया था? आई मीन, क्या आप वो डिस्क्राइब कर सकते हो? मुश्किल है डिस्क्राइब करना, और ये किसी भी सैनिक के लिए, चाहे वो सिपाही हो चाहे अफसर हो, किसी के भी लिए ये डिस्क्राइब करना मुश्किल है, क्योंकि वो इतनी बड़ी खुशी की और गर्व की भावना होती है कि वो शब्दों में समाना मुश्किल है। डर लगा था या ऐसा लगा था कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या प्राइड आया था कि मैं अपनी कंट्री को सर्व कर रहा हूँ, प्रोटेक्ट करने जा रहे हूँ?
डर ये शब्द तो आता ही नहीं है फौजी की डिक्शनरी में, तो उसका कोई सवाल ही नहीं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट ज़रूर थी, हमेशा रहती है। जब आप रोज़ सुबह उठ के भी आप यूनिफॉर्म पहनते हो तो उतनी ही एक्साइटमेंट रहती है। और यस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर बढ़ती है जैसे ही आप अपना यूनिफॉर्म परिधान करते हो। बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप यूनिफॉर्म में होते हो और आप नॉर्मल ड्रेस में हो। सर, जैसे कि आपने इतना ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया कि कमेमोरेशन में क्या किया जाता है, पहली बार आपने रैंक पहनी थी, आपका जर्नी वहाँ से जब तक आपने सर्व किया, मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानना है आपसे कि जैसे ही आपने वो कंप्लीट किया, आप कहाँ पे सर्व कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आपने ब्लैक कैट कमांडो भी आपने जैसे सर्व किया है, सो वो मुझे आपसे जानना है। ओके, Where were you first placed जैसे कि after the मैं commemoration? मेरी इंजीनियरिंग करके इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मैंने ज्वाइन किया और ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद कमीशनिंग के उपरांत मेरा पहला जो पोस्टिंग हुआ था वो कोर ऑफ इंजीनियर्स में हुआ, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग करके फौज में गया था। तो कोर ऑफ इंजीनियर्स में एक बॉम्बे सैपर करके ग्रुप है, उस ग्रुप में 112 इंजीनियर रेजिमेंट में मेरी पहली पोस्टिंग थी, जो मेरी अभी भी मेरी पेरेंट रेजिमेंट कहलाती है। ओके। और मेरा पहला जो पोस्टिंग था यूनिट के साथ पंजाब से शुरुआत हुई थी, लेकिन पंजाब में कुछ एक महीने रहने के बाद तुरंत ही हम जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए थे। ओके। और जम्मू कश्मीर में भी ऐसे जगह पे थे जो उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता था, यानी कि पहले कुछ समय के लिए कुपवाड़ा, फिर पंजगाम और अनंतनाग। ओके। और उसके बाद में उसी टेन्योर के आखिरी में हम पहलगाम और ऐशमकाम में भी तैनात थे। तो पहला ही मेरा टेन्योर आर्मी सर्विस का जम्मू कश्मीर में था, इस करके बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग शुरुआत हुई है मेरे टेन्योर की और करियर की। और वहाँ का टेन्योर ख़त्म करने के बाद मुझे मौका मिला ब्लैक कैट कमांडोज जैसे एक बहुत ही नामचीन यूनिट के प्रोबेशन में हिस्सा लेने का, क्योंकि वह ऐसी यूनिट है जिसमें आप प्रोबेशन पास नहीं करोगे तो आपको वहाँ पे पोस्टिंग नहीं मिल सकती। इसलिए पहले आपको प्रोबेशन के लिए बुलाया जाता है। 3 महीने का प्रोबेशन होता है जो काफ़ी खड़तर या काफ़ी मुश्किल होता है, फिजिकली बहुत डिमांडिंग होता है। वो सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद ही आप नॉर्मल आर्मी यूनिट से ब्लैक कैट कमांडो जैसी यूनिट में जा सकते हैं। तो मुझे वो भी करने का मौका मिला। ब्लैक कैट कमांडोज में रहते रहते काफ़ी नए नए काफ़ी मॉडर्न वेपन इक्विपमेंट हैंडल करने का मौका मिला, जो आमतौर पे शायद एक इंजीनियर ऑफिसर को शायद नहीं मिल सकता। उसके बाद उसी में रहते रहते मुझे पैराट्रूपिंग करने का मौका मिला और इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ आते गए। तो सर्विस हमेशा ही इंटरेस्टिंग रही है, हर टेन्योर इंटरेस्टिंग रहा है। बिल्कुल। ब्लैक कैट कमांडोज जैसे यूनिट में 3-3.5 साल रहने के बाद मुझे फिर एक बार इंजीनियरिंग फील्ड में काम करने का मौका मिला, जब मैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में तैनात था मिजोरम जैसे जगह पे। वहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट में उस ट्राइबल एरिया में काम करने का मौका मिला। वहाँ पे भी काफ़ी कुछ नया सीखने का मौका मिला। उसके बाद 99 में जब कारगिल का युद्ध हुआ, तब मेरी पेरेंट रेजिमेंट कारगिल युद्ध में शामिल थी, जिसके लिए मेरे पेरेंट रेजिमेंट को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन और यूनिट साइटेशन भी मिला है। उस समय मैं रेजिमेंट में नहीं था, लेकिन तुरंत ही मिजोरम से मेरा तबादला रेजिमेंट में हुआ और मैं द्रास और लेह सेक्टर में रेजिमेंट के साथ रहा, कारगिल में भी रहा। और जैसे ही वो टेन्योर ख़त्म होके हम पीस में आए, राजस्थान में आए, तो तुरंत 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो गया और उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम शुरू हो गया। तो ऑपरेशन पराक्रम में भी अपने आई थिंक आप शामिल थे। जी हाँ, ऑपरेशन पराक्रम में हमें शुरू से हिस्सा लेने का मौका मिला। उस समय हम राजस्थान सेक्टर में तैनात थे। आपने बॉर्डर मूवी में लोंगे वाला सेक्टर का नाम सुना होगा, तो मेरी रेजिमेंट वहीं पे थी। और आपकी जानकारी के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं कोर ऑफ इंजीनियर्स को बिलोंग करता हूँ। तो जब
लड़ाई लगने का अंदेशा होता है या जब युद्ध मैदान में सेना पहुंचती है, हाँ, तो सबसे पहले इंजीनियर्स का काम शुरू होता है जो बारूदी सुरंग लगाने का, ताकि दुश्मन हमारे इलाके में ना आ पाए। तो जैसे ही ऑपरेशन पराक्रम शुरू हुआ तो सबसे पहले हमारी इंजीनियर रेजिमेंट्स वहाँ पे तैनात हो गई और हमने माइन लेइंग शुरू कर दी थी। ओके, और उसके बाद तकरीबन 1 साल तक हम उसी रेगिस्तान में तैनात रहे। और ऑपरेशन पराक्रम जब कॉल ऑफ हुआ, उसके बाद जितनी भी मायने हमने लगाई थी, जितने भी सुरंग हमने लगाए थे, वो सारे हम वापस निकाल के ले आए। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये सब करते हुए मेरे रेजिमेंट में या मेरी कंपनी में एक भी कैजुअल्टी नहीं हुआ। वाओ सर। तो हमारे लिए ऑपरेशन पराक्रम एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल सीख लेने की एक अपॉर्चुनिटी थी। और उस वजह से जिस तरह से हमारी कंपनी और हमारी यूनिट बंध गई, जो बॉन्डिंग पैदा हुआ, उस तरह का बॉन्डिंग शायद किसी और टेन्योर में नहीं हो पाता। जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशन पराक्रम एक यूनिट को और मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा मौका था। यूनिट बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशनली ओरिएंट होके वापस अपने पीस लोकेशन में आई। उसके बाद मुझे एक बहुत अच्छे कोर्स में जाने का मौका मिला, जिसे करना अपने आप में काफ़ी सम्मानजनक माना जाता है आर्मी में। उसको कहते हैं डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, जो 1 साल का कोर्स होता है, जो वेलिंगटन ऊटी के पास तमिलनाडु में जो जगह है वहाँ पे होता है। तो वो कोर्स मुझे करने का मौका मिला। उस कोर्स के बाद दोबारा मुझे कश्मीर वैली में तैनात होने का मौका मिला। जब मैं बारामूला में पोस्टेड था, मुझे लाइन ऑफ कंट्रोल पे ड्यूटी करने का मौका मिला। उसके बाद फिर लेफ्टिनेंट कर्नल से मेरा प्रमोशन बोर्ड सक्सेसफुल होने की वजह से मैं कर्नल बन गया। और मुझे हर कमीशन ऑफिसर का जो एक सपना होता है, वो सपना साकार करने का मौका मिला कि मैं एक दिन अपने यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर बनूं। वाओ। तो इस तरह से मैं बहुत ही भाग्यशाली था जो मुझे बॉम्बे सैपर के ही एक यूनिट का कमांड करने का मौका मिला। जैसे मैंने पहले कहा था कि मेरी पेरेंट यूनिट 112 इंजीनियर रेजिमेंट है, लेकिन जिस समय मैं कमांड करने के पीरियड में था, उस समय मेरी यूनिट को ऑलरेडी कोई ऑफिसर कमांड कर रहे थे, इसलिए मुझे बॉम्बे सैपर की ही दूसरी और नामचीन यूनिट को कमांड करने का मौका मिला, जिसे कहते हैं शत्रुजीत इंजीनियर रेजिमेंट, 107 इंजीनियर रेजिमेंट। ओके। तो वो इंजीनियर रेजिमेंट 2 साल कमांड करने के बाद फिर मुझे वहाँ से मैं नसीराबाद चला गया, जहाँ पे मैं इंजीनियर ब्रिगेड में डिप्टी ब्रिगेड कमांडर था। फिर वहाँ से मैं वर्क्स के तौर पे, कमांडर वर्क्स के तौर पे मुझे एयरफोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का मौका मिला बेंगलोर सेक्टर में। फिर वहाँ से मैंने अपना क्वालिफिकेशन एनहांस करने के लिए 2 साल का सबैटिकल लिया था, जिसमें मैंने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद एक ऐसा मौका मिला जो अमूमन बहुत ही कम आर्मी ऑफिसर को शायद मिलेगा। इंडियन आर्मी की इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन की सिर्फ 2 यूनिटें हैं। ओके। जिसको आप इंडियन आर्मी की मिनी नेवी कह सकते हो। हाँ। तो उसमें से एक यूनिट को मुझे कमांड करने का मौका मिला, जो गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्रा में क्राफ्ट्स का संचालन करती है। तो वो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नया और बहुत ही अलग किस्म का एक्सपीरियंस था। जब तक वो मेरा टेन्योर ख़त्म होता है तो मुझे खुश खबर मिली कि मैं ब्रिगेडियर के लिए अप्रूव हो गया हूँ। वाओ। तो उसके बाद फिर मुझे जलंधर में एक पूरे कोर का चीफ इंजीनियर के तौर पे काम करने का मौका मिला। और मेरा आखिरी टेन्योर जो था, जो पुणे में स्थित जो बॉम्बे सैपर का ट्रेनिंग सेंटर है, उसके कमांडेंट के तौर पे मुझे अपनी सेवा देने का मौका मिला, जो अपने आप में बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि बॉम्बे सैपर या कोई भी ऑफिसर के लिए उसका रेजिमेंटल सेंटर एक बहुत गरिमा का हिस्सा है। और उस रेजिमेंटल सेंटर को एक कमांडेंट के तौर पे सेवा करने का मौका मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मेरा जर्नी इस तरह से रहा है। और मेरा आखिरी टेन्योर, जैसे मैंने कहा, बॉम्बे सैपर सेंटर का कमांडेंट था। उसके बाद मैं 30 सितंबर 2024 को रिटायर हुआ। That was such an interesting journey and इसके आपकी जर्नी की जो पार्ट है उसमें और हम ज़्यादा अंदर मुझे जानना है। बट इस बीच में मुझे ये जानना है कि
आपकी शादी कब हुई? मतलब यू हैव बीन सर्विंग फॉर सो मैनी इयर्स, तो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में आप बताइए. वेल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. जब मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन किया उस समय मैं ऑलरेडी फॉर्मली एंगेज था. ओके. मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी. सो वो कौन, मतलब हाउ ओल्ड वर यू सर? Well, I was young. I was not old. I was about 23, 24 years young. ओके. And I was already engaged to my present wife. And it is only because of her support and her resilience that she said, okay, even after engagement, you want to pursue your dream, you please join the academy, complete your training, I'll wait. That is so good of you. Absolutely. And so after my engagement, she waited for 2 years. Rather, we waited for 2 years to get married. After completing the training, after completing the young officers training and first tenure, I got married. Okay. That was in And which that was year? in 1993. Okay. And she is a professional. She's a cost accountant. She was working with corporate sector then. But she decided to leave her job and join me. And as luck would have it, within 2 months, we got posted out from the peace station and went to Kashmir Valley. So then she continued staying there. Wow. For whatever period we were in the valley, she continued staying in the peace station. She quickly adapted to the requirements of that particular peace station in terms of pursuing her professional life. And she switched over from a plum corporate job in Pune to a school teacher's job in Bathinda. Okay. So that's how the journey started. And it is because of her support that I could pursue So my sweet. career. Has it ever been कि उन्होंने आपको बताया हो कि how of course for every spouse whose spouse is an army, a man, कि उनको कभी कुछ डर लगा हो कि always there's a fear that I don't know if my husband is going on a war field, will he ever return, not return? उन्होंने कभी ऐसा कुछ आपको एक्सप्रेस किया हो? वेल, ये भावना तो हर एक के दिल में होगी. हर एक लेडी, हर एक माता पिता के दिल में होगी. I'm sure, yeah. और ये इनके दिल में भावना है, ये हर एक सैनिक जानता भी है. शायद वही उसको शक्ति प्रदान करता है कि वो अपनी और अपने साथियों की सुरक्षा का ध्यान रखे जब वो लड़ाई के मैदान में है. इसके वजह से किसी को कमज़ोरी तो शायद नहीं आती होगी, लेकिन ताकत ज़रूर मिलती है. और ये भावना कभी भी कोई ऐसे जाहिर नहीं करता, क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद अगर ये भावना हम जाहिर करेंगे तो आगे जाने वाले का कदम शायद रुक जाए. सो इट इज़ अ अनस्पोकन नॉर्म, बट इट इज़ ऑल्सो अंडरस्टूड वेरी वेल कि ये है. So sir, in your 33 years of service, what all actions or wars have you seen happening in India? ओके, एज आई मेंशन इनिशियली, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि मेरा पहला ही टेन्योर जो था वो कश्मीर वैली में तैनात होने का मौका मिला. तो उसे हम युद्ध या वॉर तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसे ऑफिशियली ऑपरेशन रक्षक के तौर पे संबोधित किया जाता है. तो जितने भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं उनको ऑपरेशन रक्षक या ऑपरेशन फाल्कन या ऑपरेशन राइनो के तहत माना जाता है. तो जो भी डिप्लॉयमेंट आपकी काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में होती है वो एक ऑपरेशन के तौर पे ही होती है. उसके अलावा जैसे हम सभी जानते हैं कि 1999 में ऑपरेशन विजय, जिसको कहते हैं, कारगिल का लिमिटेड वॉर हुआ था. उस समय मेरी पेरेंट रेजिमेंट कारगिल में तैनात थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस समय रेजिमेंट में नहीं था. मेरी तैनाती उस समय बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिजोरम में थी. अच्छा. और मिजोरम में हमें संकेत मिले थे कि शॉर्ट नोटिस पे हमें वापस रेजिमेंट में जाना पड़ सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं. इसलिए ऑपरेशन विजय के दौरान मैं कारगिल सेक्टर में नहीं था. क्योंकि कारगिल वॉर ख़त्म होते ही तुरंत मेरी तैनाती वापस मेरे रेजिमेंट के साथ हो गई थी. तो थोड़ा बहुत ऑपरेशन विजय के बाद उस सेक्टर में तैनात होने का मौका मिला, लेकिन जब एक्चुअल ऑपरेशन विजय चल रहा था तब मैं वहाँ पे नहीं था. उसके बाद
2001 दिसंबर में जब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ और तुरंत ही हमारे सरकार ने डिसीजन लिया, तो उसे ऑपरेशन पराक्रम नाम से हम जानते हैं, जो हमारे लिए कोर ऑफ इंजीनियर्स के लिए तकरीबन वॉर के तौर पे ही था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला काम जो होता है और सबसे खतरनाक काम जो बारूदी सुरंग लगाने का, वो हम ऑलरेडी शुरू कर चुके थे और हमने ख़त्म भी कर दिया था। लेकिन उसके बाद अच्छा है कि कोई आगे की कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन वो सारे बारूदी सुरंग और माइंस दोबारा से निकालने का भी हमने काम किया, सकुशल किया, बिना किसी कैजुअलिटी के किया, जैसे मैंने बताया था। तो ये एक अपने आप में हमारे लिए एक वॉर ही था। बिल्कुल। उसके अलावा फिर 2008-9 में मुझे असम सेक्टर में तैनात होने का मौका मिला था, जिसे वहाँ पे ऑपरेशन फाल्कन और ऑपरेशन राइनो के तौर पे संबोधित किया जाता है। तो इस तरह के ऑपरेशंस और लिमिटेड वॉर्स मेरे 33 इयर्स के दौरान मैंने देखे हैं। राष्ट्रीय राइफल के साथ काम करने का मौका मिला 1995 में। तो वो भी अपने आप में एक इंसर्जेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है जो खतरे से खाली नहीं है। उसके अलावा मैं तकरीबन 3-3.25 साल तक ब्लैक कैट कमांडोज जैसे यूनिट में था, जो हमेशा ही ऑपरेशनल मोड में रहता है। तो एक्शन काफ़ी देखने का मौका मिला और काफ़ी कुछ सीखने का भी मौका मिला। और सर, इसमें से ऑन गोइंग ऑपरेशंस कौन से हैं, वो आप बता सकते हैं हमें? ओके, ऑन गोइंग ऑपरेशन जैसे मैंने कहा कि जितने भी हमारी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, वो ऑपरेशन रक्षक या ऑपरेशन राइनो के नाम से जाने जाते हैं। और जो सियाचिन ग्लेशियर में हमारी परमानेंट डिप्लॉयमेंट है, उसे ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जाना जाता है, जो भी कंटिन्यूसली ऑन गोइंग ऑपरेशन है। और जैसे फिलहाल आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग ऑपरेशन माना जाता है। दैट ऑपरेशन इज स्टिल ऑन। इज इट? यस। ओके। आपने सियाचिन की बात करी, ऑपरेशन मेघदूत। It's considered to be one of the most difficult state for the warriors, who are deployed at Siachen. आप उसके बारे में हमें कुछ information और दे सकते हैं? मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि ऑपरेशन मेघदूत की जो डिप्लॉयमेंट है, वो शायद किसी अन्य देश को इस तरह की डिप्लॉयमेंट करने का मौका नहीं है। सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात टेरेन वाइज, वेदर वाइज, वहाँ पे कंडीशंस इतने सीवियर है कि मटेरियल तक फटीग हो जाता है, यानी कि लोहा या फाइबर भी उसमें फटीग में आ जाता है। तो ह्यूमन बॉडी का आप सोच भी नहीं सकते, इतने डिफ़िकल्ट वर्किंग कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, ऑक्सीजन लेवल्स इतने डिप्लीटेड हैं। क्या होगा वहाँ पर? आप इमेजिन कर सकते हैं, जहाँ पे -40, -50 टेम्परेचर हमेशा ही रहता है, ये नहीं कि एक दिन के लिए चला गया। ओह माय गॉड। अगर वहाँ पे आपको एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे जाना है, तो हर एक स्टेप खतरे से खाली नहीं है। वहाँ पे क्रेवैसेस हैं, वहाँ पे बहुत गहरी खाइयाँ हैं, बिना स्पेशल इक्विपमेंट के आप मूव ही नहीं कर सकते। ऑक्सीजन लेवल्स बहुत कम है, आप नॉर्मली बैठ के भी आप ब्रीथ नहीं कर सकते। तो दे आर एब्सोल्युटली अनइमेजिनेबली डिफ़िकल्ट कंडीशंस फॉर एनीबडी टू सर्वाइव, लेट अलोन सर्वाइव एंड फाइट। और वहाँ पे सर खाना और पानी कैसे पहुँचता है? आप बता रहे हो कि इतना डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे तो कुछ बनता तो नहीं होगा, सो वो किस तरीके से पहुँचाते हैं गवर्नमेंट? आर्मी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है हमारा लॉजिस्टिक सप्लाई सिस्टम। ओके। और जितना डिलिबरेट प्लानिंग और डिलिबरेट एग्जीक्यूशन आर्मी लॉजिस्टिक्स का होता है, उतना शायद कहीं और नहीं होता होगा। और जितना डिफ़िकल्ट टेरेन है, जितना फार फेच्ड लोकेशन है, उसके लिए लॉजिस्टिक का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ग्लेशियर का जो लॉजिस्टिक्स है, वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं इतना ही कहूँगा कि भारतीय सेना सक्षम है कि इतने डिफ़िकल्ट कंडीशन में अपने जवानों को पूरी तरह से महफूज रखने के लिए, पूरी तरह से उनको वेल इक्विप्ड, वेल फेड, वेल आर्म्ड और वेल मोटिवेटेड रखने के लिए भारतीय सेना सक्षम है, जो पिछले
तकरीबन 40 साल से ज़्यादा कर रही है, ओके, वाओ। 1984 से अब तक। सर, मैंने सुना है कि सियाचिन में पोस्ट होने से पहले 6 महीने तक की ट्रेनिंग दी जाती है, एक्लिमेटाइजेशन टू लिव इन दोज कंडीशंस, तो वो सही बात है? हाँ, जैसे मैंने कहा कि सियाचिन में डिप्लॉय होने के पहले सियाचिन बैटल स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है, उसके पहले एक्लिमेटाइजेशन होता है, उसके पहले आपकी स्लो कंडीशनिंग होती है कि आप डायरेक्टली उस ऑल्टीट्यूड पे जाके तैनात कभी भी नहीं होते। आप हाँ, बिल्कुल। 9,000 फुट से शुरू करते हैं और फिर जाके 19, 20, 21,000 फुट तक पहुंचते हैं। तो उसमें उतना समय ज़रूर लगता है। और जो आपने सुना है कि डिप्लॉयमेंट के पहले प्री ट्रेनिंग का समय उतना ही या उससे भी लंबा होता है, ये सही सुना है। और सर, एक जवान, सियाचिन जवान, वहाँ पर कितने टाइम तक डिप्लॉयड रह सकते हैं उस वेदर कंडीशंस में? नॉर्मली मेडिकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए 3 महीने से ऊपर किसी का डिप्लॉयमेंट वहाँ पे नहीं रहता। पर 3 महीने तक रहते हैं? यस, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के लिए या वहाँ पे पहुँचने के पहले जिस तरह का एक्लिमेटाइजेशन ट्रेनिंग करवाया जाता है और जिस तरह के मेडिकल चेकअप्स और टेस्ट किए जाते हैं, उसके वजह से बहुत फ़र्क पड़ता है कि वहाँ पे वही जवान, वही अफसर पहुँचता है जो फिज़िकली, मेडिकली, फिजियोलॉजिकली अपने आप में बहुत ही फिट है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जाने के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं क्योंकि कंडीशंस बहुत हार्श है, जैसे मैंने कहा। बट स्क्रीनिंग जिस तरह का होता है और प्री डिप्लॉयमेंट ट्रेनिंग, जिसे हम एक्लिमेटाइजेशन ट्रेनिंग कहते हैं, बहुत ही आले दर्जे का ट्रेनिंग दिया जाता है। सियाचिन बैटल स्कूल एक अलग एस्टैब्लिशमेंट है जो सियाचिन में डिप्लॉय होने के लिए अलग तरीके से सभी को ट्रेन करता है। तो वो हमारी ताकत है और इस तरह से हम वहाँ पे अभी भी तैनात हैं। वाओ। और आपने इन ऑपरेशंस में से कौन से ऑपरेशन में पार्ट लिया? आई थिंक आपने मेंशन किया पहले कि ऑपरेशन पराक्रम में। ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन विजय जो है वो नियर वॉर और वॉर लाइक सिचुएशंस है, जबकि बाकी के जो ऑपरेशंस है जो वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस है, जो अलग किस्म के ऑपरेशंस है। तो ऑपरेशन रक्षक में मुझे काम करने का मौका मिला, ऑपरेशन राइनो में काम करने का मौका मिला, ऑपरेशन फाल्कन में काम करने का मौका मिला। अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन मेघदूत में मुझे हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला, जो सियाचिन ग्लेशियर की डिप्लॉयमेंट होती है, वो मेरे हिस्से में नहीं आई। एक वाकया मुझे याद है बहुत अच्छी तरह। 30 दिसंबर की शाम थी 2001 और सनसेट हो चुका था और एक माइनफील्ड में जो बहुत ही ख़तरनाक इलाके में थी, किसी माइन के साथ कुछ डाउट हो गया था कि वो माइन शायद एक्सीडेंट कर बैठे। तो उसको लेके वो जवान जो माइन कैरी कर रहा था, उसको शायद भरोसा नहीं रहा कि ये माइन सेफ़ है, तो उसने वो माइन वहीं पे छोड़ दी और वो माइन फील्ड से बाहर निकल गया। एक कंपनी कमांडर होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता था कि उस माइन को उस तरह से ओपन में ना छोड़ा जाए, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि माइन फील्ड का पूरा सरप्राइज फिर ख़त्म हो जाता है। तो हमें डिसीजन लेना पड़ा कि वो माइन को किसी भी हालत में वहाँ पे पड़े नहीं रहने देना है, वहाँ से उसको या तो निकाल के बाहर लाना है या उसको वहीं पे ज़मीन में कैमोफ्लाज करना है। बट एज ए कंपनी कमांडर मैं किसी को भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि वो माइन ऑलरेडी शायद सेफ नहीं रही थी, वो अनसेफ हो गई थी। और उसी के 2 दिन पहले उसी सेक्टर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुए थे उसी माइन को लेके। मैं माइन का नाम नहीं बताऊंगा या यूनिट का नाम नहीं बताऊंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन थोड़ा खतरा था। इसलिए फिर एज ए कंपनी कमांडर मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि ये काम मैं खुद ही करूंगा, क्योंकि और किसी को मैं उस तरह की नोन डेंजर के लिए ऑर्डर नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन उस माइन का वजन थोड़ा ज़्यादा होता है, अकेले आदमी को अनसेफ माइन को इस तरह से हैंडल करना। सर, आप साइज और वजन या साइज में बता सकता हूँ, तकरीबन वो 4 फुट लंबा होगा, तकरीबन 6 इंच चौड़ा और तकरीबन 4 से 5 इंच मोटा। एक रेक्टेंगुलर, सॉलिड रेक्टेंगुलर माइन होता है वो, जिसका वजन तकरीबन 10 से 11 किलोग्राम होता है। और उसे एंटी टैंक माइन कहते हैं, जिसके वजह से
40-50 टन का एक टैंक पूरा उड़ सकता है। तो आप समझ सकते हो कि उसमें कितनी ज़्यादा ताकत होगी। अगर वो गलती से एक्सीडेंटली अगर इनिशिएट हो गया तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए खतरा तो था, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था कि हमारा सरप्राइज़ बना रहे। इसलिए डिसीजन लिया गया मेरे लेवल पे कि ये काम मैं खुद ही करूँगा। और उस समय मैंने वॉलेंटियर भी नहीं पूछा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर कोई मैं वॉलेंटियर पूछूंगा तो सारी कंपनी अपना हाथ खड़ा करेगी। उसमें मुझे अभी भी पूरा विश्वास है कि हर एक बंदे ने हाथ खड़ा करना था। तो इसलिए मैंने जो जवानों में से सबसे सीनियर मोस्ट था, जिसको हवालदार मेजर कहते हैं, हवालदार मेजर जिसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा था, मैंने उसको पूछा कि क्या वो इस काम के लिए मेरे साथ आने के लिए तैयार है। तुरंत ही उन्होंने हाँ भरी। मेरे कंपनी के 2IC थे जो कैप्टन थे उस समय, उन्होंने बहुत कोशिश की मुझे वो काम करने से रोकने की। उन्होंने कहा कि सर नहीं, आप कंपनी कमांडर है, आप नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। सो उस समय फिर मुझे मेरे रैंक का इस्तेमाल करना पड़ा और कहना पड़ा कि सीनियर मैं हूँ, तो आदेश मैं ही दे सकता हूँ और कोई नहीं दे सकता। जिम्मेवारी ज़्यादा बड़ी थी, तो इसलिए हमने सोचा कि सेफली हो जाएगा। और वहाँ पे जाने के बाद उस माइन को हमने कैसे तैसे सेफ करके ज़मीन के अंदर कैमोफ्लाज करके उसको वहीं पे हमने ले कर दिया। और जो सरप्राइज कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता था वो होने से बचाया। बट उस समय मुझे अच्छी तरह याद है, जो हमारे उस समय के कंपनी हवलदार मेजर थे, उनका नाम था हवलदार तानाजी उत्तुरकर। वो तानाजी की तरह ही बड़ी बड़ी मूछें होती थी उनकी। बाद में वो ऑनररी कैप्टन रिटायर हुए। तो उनसे मैंने बड़ी ही फिल्मी स्टाईल में पूछा था की तानाजी, तुम्हाला तुमच्या पत्नीच्या मंगळसूत्रावर आणि कुंकवावर विश्वास आहे का? और तानाजी ने कहा था, होय साहेब आहे। मैंने कहा मला पण आहे, चला आपण जाऊया। कभी कभी आपको थोड़ा मेलोड्रामेटिक होना पड़ता है जस्ट टू रेज द मोरल ऑफ योर ट्रूप्स एंड टू रेज योर ओन मोरल ऑल्सो। एंड लकीली उनके बीवी का मंगलसूत्र और मेरी बीवी का मंगलसूत्र दोनों भी बहुत स्ट्रांग था और अभी भी है। सो दैट्स व्हाई वी आर हियर। Superb, sir. I mean, I have no words to even, realize how you must have felt But I must tell you, before taking that decision of going and, covering the minefield. क्या था वो feeling? it's a sense of duty, nothing else. Absolutely. But to know that I don't know if I'm going to be able to, come back, because like you said, that it is a very dangerous thing It is. to But handle. let me tell you, एक बार अगर आप ऑपरेशनल एरिया में हो, युद्ध के मैदान में हो, फिर आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा फर्क नहीं करती आपके लिए, क्योंकि आप वहाँ पे पहुँच चुके हो। बिल्कुल। तो जो भी होगा उसके बाद अच्छा ही होगा। और ये मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह का ये डेंजर मैंने फेस किया था, देयर आर so many soldiers and officers who have faced much more and much direct danger than probably what I have faced. सर एक क्वेश्चन, जब 1 साल तक आप वहाँ पे डिप्लॉयड थे, आपका ट्रूप, तभी कम्युनिकेशन नहीं होता रहेगा विद द फैमिली, और वाज इट पॉसिबल टू कम्युनिकेट? No, in today's world it may sound very funny or very unimaginable, but yes, you are right. Communication was a major problem by design, or maybe I don't know how, but the STD booths in the near army, near the border areas were not functional. The STD lines were not functional. Troops, including the officers, could not talk to their people back home for quite some time. So these conditions do prevail, and at times it is in the interest of the situation at that time, and it is warranted, it is required, because you don't know who will spill out what kind of information. Especially so at when that point of time, sir, how was the family looked after or communicated? Because 1 year is, of course, a very long time. Yeah, that is one good question you asked, because it opens a complete different domain of the army way of living. Exactly. As our unit was deployed in peace station, so obviously the Jawans were permitted to bring their families, and more than 200 families were there in station.
All officers were with their families when this Operation Parakram mobilization happened. So when everybody moved to the field area, the peace station was left with very limited skeletal structure of the men folks back in the cantonment. Right. And most of the ladies who came with their husbands to stay in peace station were living in their quarters all alone with the small children. There were anxieties, there were at times panic, but that is where the strong support of the army wife comes into play. There is a beautiful organization called Army Wife Welfare Association, AWWA, it is called AWA. Okay. The commanding officer's wife is supposed to be heading this section of AWA for the unit. Yeah. So she becomes the rallying point for all the families in such situation to come up with their anxieties or concerns, and she handles all these things like almost like an ex officio commander of that particular location. And I must tell you that our commanding officer then, I will not name him because I have not taken his permission to name him and the lady, but our commanding officer then was himself a fantastic leader on field, and his better half was handling the rear location extremely well. She could rally around all the ladies through their respective company commanders, lady wives, officers, lady wives, the Jawans' wives, whosoever was having any kind of concern, any kind of medical problem, any kind of panic, any kind of rumor mongering. She was the one who was handling it and controlling it all well in the rear location. And that's why all the men could concentrate on their primary job in front. So that is a very, very strong backbone, one can say, which makes the army even stronger. That's so true. This was all about Operation Parakram. Any other operation that you have been a part of? There are many operations, but the code or the norm is you shouldn't be discussing these in public. Right? One has been lucky to serve in various units. One has been lucky to serve in various operational areas. Beyond that, I would not say anything. Sure. सर अभी रिसेंट में बड़ा सा हादसा हो गया था अपने नेशन के साथ, और उसको टैकल करने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, एंड विच इज़ स्टिल एन ऑन गोइंग ऑपरेशन, जैसे कि आपने बताया. तो इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? 22 अप्रैल 2025 को जो हादसा हुआ पहलगाम में, और उसके बाद हमारे देश ने जिस तरह से करारा जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए, और जो अभी तक ऑनगोइंग ऑपरेशन माना जाता है, मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे देश के आर्म फोर्सेस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, लीडरशिप ने ऐसा कर दिखाया है जिसके लिए पूरे देश को हमेशा उसके ऊपर गर्व रहेगा. और हमारे आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी, सभी ने एकजुट होकर इंटीग्रेटेड फेस जो पुटअप किया है, जिसकी वजह से देश का सम्मान बढ़ा है. मुझे एक ही बात का दुख है कि उस समय मैं सर्विस से रिटायर हो चुका था. आई विश आई शुड हैव बीन इन सर्विस देन. सो गुड ऑफ यू, थैंक यू फॉर दैट. एंड सर अभी मुझे ये आपसे जानना है कि जो आई थिंक इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ही एक रिक्वायरमेंट बाहर डाली गई थी गवर्नमेंट ने कि वॉलंटरीली हु वांट्स टू जॉइन the army, help the army, so they could gather at a particular place in Chandigarh. And I happened to read about it, and I saw कि more than thousands of volunteers were present at that particular venue. I'm sure they were not trained enough, but they showed the courage to go stand up for the nation.
So, is it possible that in such situations, volunteers could be a part of the army? If yes, then how would they be able to help the army? See, whenever there is a full-scale war, Yeah. then always in past also, every nation has resorted to recruiting young men and women as per the norms of that society to join the army or the any force, navy or air force, Yes, yes. to strengthen the armed forces. Right. It's not necessary that everybody is directly sent on the front, because there are so many essential duties even in the rear echelons, Okay. be it logistics, be it administration, be it medical cover, be it any other requirement, communication. So to strengthen the backbone of the fighting troops who are fighting ahead, Right. all sorts of assistance is required from volunteer people. So that is where all nations have resorted to enrolling and recruiting the youth at that point in time, and it is not surprising. And even I'm quite confident. Even today, you give a call in any city of our country, there would be thousands of troops, thousands of youth coming, men and women alike, boys and girls alike. And I must tell you my personal experience. As I said, I was the commandant of the training center as my last appointment. We used to do recruitment for the Bombay Sappers. Recruitment rallies, you'll be surprised, you really have to deploy local police and local administration to control the crowd. There's so much of enthusiasm amongst the youth to Wow. join the army. And this is a very happy state. This is Yeah. an eye opener for those people who feel that today's youth is not ready to take cudgels for the nation. No, it's not true. Exactly. Thousands of people turn up for the recruitment rallies, and they stand there since 2 in the morning to report at 6 and start the race. That's such a proud feeling. It is Absolutely. very true. If you could guide the, young men and women who wish to be part of the Indian Army or Air Force or Navy, whatever it may be, what would be your advice? My advice, firstly, is you should go on to the official website of any of these three forces, Army, Navy, Air Force. You should look for and listen to the advertisements being shown and being telecast on various FM channels and other modes, giving the official website of Army, Navy and Air Force, enroll yourself, create your profile and leave your details there. Okay. And be vigilant and observant to see at what time the recruitment schedule of that particular force is coming up, which you want to join. Somebody may want to join Army, somebody may want to join Navy, Air Force, depending on his or her choice. That is one part. That is creating your profile on the official website and leaving your contact details with the website so that you get intimated. Most important is keep yourself physically and medically fit, Exactly. so that when you have to face the test, when you have to appear for the exams, you can pass with flying colors and there is no disappointment. Having enthusiasm is a very good thing, but it should be equally supported and coupled with ability to perform physically and pass the mental ability tests. So my advice would be keep yourself fit, remain relevant, up to date in terms of various recruitment schedules which are there in your area, and approach the nearest recruitment office, which is very easy to find in your own locality, and go and approach them. Today, all the three services are more than happy to give any information to any youth coming to them about joining the forces. It is not held back anymore. I also, with your permission, sir, Yeah. I would want to ask, in movies we've seen that there are letters written to the spouse, to your wife, to your family. Have you ever done that? Yes, initial so many months of my service, so many years of my service, when
carrying mobile phone in your pocket was not the option. Even reaching out to the nearest STD booth was possible once in a month. The only mode of communication was writing letters and long letters. And सर वो फीलिंग क्या होती थी जब आपको पता चलता था कि आपके लिए लेटर आया है? हाउ? well, it's a great feeling. I mean, it is very, very aptly, it has been summarized in a beautiful song in movie Border. यस. That very famous song, संदेश से आते हैं, संदेश से जाते हैं, and the entire picturization of that particular song, where the dispatch rider comes with a bag full of letters. Yes. It used to be a great feeling. I mean, even I remember times when you are on a post and you are not able to reach to the headquarter location, which is quite far off. But in the headquarter location, a letter has arrived, and the unit adjutant is passing it to you on the radio कि सर आपका चिट्ठी आया है, अगले बारी जब आप पेमेंट लेने के लिए नीचे आओगे तो चिट्ठी ले जाना, लेकिन उसके पहले मेरे लिए मिठाई ले आना. Such kind of sweet blackmails also go on. Okay. But those things used to happen, and it was a great pleasure. And writing letters was a regular feature. Yeah. And I think that was a very beautiful thing. I would rather prefer that mode of communication than exchanging WhatsApp every second. So true. But sir, just a fun question. We've seen in movies that, there are times when they party, when they also have a fun time. How is it like? Movies में तो देखा हुआ है, but actually कैसे पार्टी करते हो? क्या होता है? Yes, life in the army is really good. It is not only hardship, it is not only being on the field every time. As and when we are in peace, or as and when even in field, we get an opportunity to bind together, celebrate an event, celebrate an achievement. Yes, we do party, and parties are more of improve or to enhance the bonding between the officers or the officers and men, and it's integral part, I would say, because you have officers and men, whether they are women officers, gents officers, soldiers. One common thing is high energy levels. Yeah. And high energy levels, so we work hard, we play also hard, and when it comes to party, there are some people who say party hard. So it is there, and it only enhances the bonding and the regimental spirit. Which is very, very important. It is again the backbone of the regimentation is the backbone of any unit. Yes. So one quote that you would want to, address आपकी जर्नी के ऊपर, या आपने जितना सर्व किया है, टीम स्पिरिट, जो आप यूजुअली फॉलो करते हो अपनी लाइफ में, और अगर आपको वो एडवाइस करना है एक कोट के फॉर्म में, आप क्या कहना चाहोगे? If it's just a quote, then I would say that what we practice, what we tell our recruits when they are undergoing training in the regimental centers, to inculcate that sense of regimentation and that sense of selfless devotion. We give them to understand and to abide by two bunyadi usul. We call it bunyadi usul. Okay. Why bunyadi usul? Because that lays the foundation of his character, that lays the foundation of his personality and dutifulness. So the first bunyadi usul, what we say is नाम नमक और निशान यही है हमारी पहचान. Okay. So it means कि for what are we going to work? For what are we going to lay down your life if it comes to that? It is the नाम, नाम रेजिमेंट का, हाँ. नमक हमारे देश का, और निशान हमारा तिरंगा. Wow. So नाम नमक और निशान यही है हमारी पहचान. Everybody has got this unique identity, and we all are bound by that. And the second bunyadi usul we try to inculcate is how do you do your work? किस तरह से आप अपने काम को अंजाम देंगे? ईमानदारी, वफादारी और इज्जत
यही है हमारी ताकत. सो आप किस तरह से काम करोगे? ईमानदारी के साथ करोगे, वफादारी के साथ करोगे और इज्जत के लिए करोगे. Once, and if you see a person abiding by just these two bunyadi usul, you would not find this person going wrong anywhere, anyway in discharge of his duties. Whichever duty he or she may perform, whether it is in war, in civil area, in administrative role, in logistics role, out of the uniform, in second innings, wherever he goes, as a normal civilian, as a dutiful son to his parents, as a dutiful husband to the wife, as a father to his children, if he is abiding by these two bunyadi usul, he would not do anything which will be perceived incorrect by others. So there are a lot of rumors that we hear about this regiment called as Naga regiment. They are termed as ferocious cannibals. But I want to know the truth from you. It's said that they would kill the dogs in the area and eat them up. They have hung some men and मुझे आपसे ये रूमर्स को या ये मिथ जो है वो बस्ट करना है. ये सही है या नहीं है? There is a regiment called Naga regiment. Yes. The intake into that regiment is primarily from the state of Nagaland and areas adjoining of particular tribes. And as they belong to a particular tribe or in that kind of upbringing they come from, they are extremely hardy, they are extremely ferocious if it comes to that. They are extremely, hardened. They can live off the land very well because they come from that area and they are extremely feared troops, ferocious. Yes. If somebody wants to attach some kind of stories to them to increase their ferociousness, it is left to their imagination. But I would not say or support such kind of rumors about. They are all said and done. They are professional army troops. Indian Army is a professional army. Yes. So cannibalism and eating dogs and all these things, I don't think so. Any professional army would ever do it and would ever glorify about it. Exactly. We are not mercenaries. We are Indian Army, uniformed soldiers. These things don't come to us. Thank you for addressing that, because there were all kinds of rumors going around and this was very important. Any other regiment that enemies feared apart from the Naga regiment? It will be unfair or incorrect on my part to name a particular regiment and not to name other regiments. There is? Because I'm saying name a particular regiment and not name other regiments because all the regiments of Indian Army are as good and as decorated, as battle hardened as any particular regiment. So it will be incorrect to say that regiment A or B or C is better. We have got 27 or 28 regiments of infantry and there are different names. Everybody is same because the postings on the border areas on the line of control are not given to a particular regiment. They are in rotation. Today there could be a Maratha regiment there, tomorrow there could be a Sikh, then could be a Jat, there could be Gorkhas, there could be Rajputs, there could be Madras, there could be Kumaon, there could be Gadwal. If any regiment is not up to it, then they would never get posted to that post. Which is the largest regiment in India? Well, infantry, there are many. Indian Army is classified into various arms and services. Yeah. Infantry is the major chunk. Okay. Almost about 40 to 50% of the army, you can say. Then we have armored corps, we have artillery, we have got corps of engineers, we have got signals, we have got corps of electronics and mechanical engineers, we have got army service corps, we have got army ordnance corps. There are fighting arms, there are supporting arms, there are supporting services. So infantry is the biggest chunk, which is called queen of the battle, who face the maximum brunt in the war front. And within infantry, there are various regiments, the names which I have just taken, starting from Brigade of the Guards up to Gorkhas. Thank you so much for giving so much of information and sharing so many insights, your experiences, how it is to be out there on the field. This is something that civilians like us would never
understand or even could relate. It's more than an honor to have you over here and to hear all of this coming out from you. We are, it's not, thank you is a very, very small term. We are more than, honored to have the biggest of biggest Indian Army, the Navy and the Air Force to serve our country while we are at ease most of the times. So thank you for being one of them, and thank you for coming once again. Thank you very much, Zalak, for giving me this opportunity to be on this platform and to make the people aware of something about the army. Yeah. Not everything, because certain things are classified, but yes, whatever I could share in the public domain, I have tried. If you permit me, I will just leave one message Please, sir. The audience, whosoever and whenever they listen to this. Yes. To serve the country is it's not necessary to be in the uniform always. It's not at all necessary to be in the army, navy, or air force. Well, that is one direct way of doing it. Yes. But indirectly, everybody can and should serve the country by being a good citizen of this country, for whom the army man would not mind laying down his life. So be that good citizen. So thoughtful, sir. Thank you very much. Thank you Thanks so a lot. much. Thank God bless us all. Jai Hind. Thank you. Jai Hind. What a powerful conversation this has been. One that reminds us that discipline, courage, and compassion can coexist beautifully. If today's episode moved you, share it with someone who could use a little reminder of what true leadership looks like. This is Bonafide Banter, and I'm your host, Zalak Mehta, bringing you stories that move hearts, shape perspectives, and celebrate the people who make a difference. Until next time, stay curious, stay inspired, and stay bonafide. Signing off, Zalak Mehta.